Hello learners and welcome back to your own channel LIY English Learn It Yourself. Learners, in this video we are going to continue with 4.1 History of Novel from section 4 class 12th English. This is going to be the second video on this topic. I have already made one video about the origin, the birth of novel and the development of novel in the video named History of Novel Part 1. If you haven't watched that video yet, go ahead, watch the video and you can come back later for this one. In this video part 2 we are going to learn about novella and elements of novel. So without further ado, let's begin. What is a novella? The word novella is originated from the Italian word novelle, which means न्यू. नोवेला जो वर्ड है उसका मतलब होता है न्यू. हमने लास्ट वीडियो में सीखा था दैट व्हेन नॉवेल वाज ओरिजिनेटेड इट वाज अ कम्प्लीटली न्यू फॉर्म ऑफ लिटरेचर, नथिंग लाइक इट एवर एग्जिस्टेड बिफोर दैट. उस टाइम पे जहाँ पे जब सिर्फ पोइट्री और ड्रामा ही प्रेवलेंट थे, जब नॉवेल का जन्म हुआ वो बहुत ही कम्प्लीटली न्यू फॉर्म ऑफ लिटरेचर था, इसीलिए उसका नाम नॉवेल दिया गया, यानी कि न्यू. What is a novella? It is a type of prose fiction which is shorter than a full length novel and longer than short stories. हमने लास्ट वीडियो में सीखा था नॉवेल के बारे में कि नॉवेल होता है एक लेंदी प्रोज फिक्शन, एक लेंदियर प्रोज फिक्शन नरेटिव, यानी कि एक लंबी कहानी जो कि काल्पनिक है. नोवेला के लिए भी सेम डेफिनेशन है. द ओनली डिफरेंस बिटवीन नोवेला एंड नॉवेल इज़ ऑफ लेंथ, कि नोवेला भी प्रोज फिक्शन है बट वो नॉवेल से लेंथ में थोड़ा छोटा होता है. वेयरएज it is not as short as short stories, it is longer than the short stories. So you can say that novella comes in between novel and short stories. वो novel से shorter होता है और short stories जितना short भी नहीं होता है उससे थोड़ा longer होता है. Though it is short but it is still well structured and it often has a satiric or realistic tone. ज़्यादातर नोवेला में satiric या realistic tone यूज़ होती है राइटर्स के द्वारा. Satiric का मतलब होता है use of irony or criticism. It usually focuses on one incident or issue with one or two main characters. जहाँ पे नॉवेल बहुत लेंदी होता है, उसका प्लॉट बहुत लेंदी होता है और उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं. नॉवेला जो कि नॉवेल से थोड़ा शॉर्ट होता है, इसीलिए उसमें ज़्यादातर एक ही इंसिडेंट या एक ही या दो कैरेक्टर्स पे ही सारी कहानी आधारित होती है. Now let us look at some of the famous novellas. The Heart of Darkness by Joseph Conrad, Death in Venus by Thomas Mann, Pearl by John Steinbeck, The Turn of the Screw by Henry James, Billy Budd by Herman Melville, and Seize the Day by Saul Bellow. So these are some of the famous novellas. Now let us look at the elements of novel. You can see on screen there are 6 major elements of novel. They are theme, character, plot, setting, conflict and language style. Now we will look at each one of these in detail. Let us begin with the theme. What is a theme? The theme is the central idea of the novel which can be expressed in a nutshell. Philosophical statement or truth which the writer puts forth through the narration of the story, and it is the message the writer wants to convey to the readers. So simple भाषा में अगर हमें समझना है तो थीम का मतलब होता है एक ऐसा मैसेज जो राइटर हमसे कहना चाह रहा है पूरी कहानी के द्वारा. थ्रू आउट द स्टोरी what message he wants to put forth or what message he wants to convey to the readers, that is called as theme and it can be expressed in just few words. जो पूरी कहानी का थीम है वो कुछ ही शब्दों में बयान किया जा सकता है. For example, I hope everyone has watched that wonderful movie titled as Dangal. दंगल मूवी सबने देखी होगी. उस मूवी की स्टोरी में बहुत सारे मेजर थीम्स निकल के आए, जैसे कि परसिवरेंस, हार्ड वर्क, बिलीविंग इन योरसेल्फ. बट थ्रू आउट द स्टोरी जो मेजर थीम था, जो फोकस था पूरी मूवी का, वो था वुमेन एम्पावरमेंट, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस लाइन थी बाय आमिर खान के, छोरिया छोरों से कम नहीं है. सो इट वाज अबाउट द इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू द वुमेन. वुमेन एम्पावरमेंट जो है दंगल का थीम था. So that's it. That is a theme. Theme is the central idea, the main message of the story. Let us move forward. Plot. What is a plot? Plot is the basic storyline. हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि नॉवेल जो है
उसमें राइटर नॉवेल को, एक स्टोरी को बहुत सारी डिटेल्स ऑफ कैरेक्टर, डिटेल्स ऑफ प्लेस, डिटेल ऑफ सिचुएशंस एंड डिटेल ऑफ सो मेनी थिंग्स, बहुत सारी डिटेल्स से अपनी कहानी को सजाता है और लेंदी बनाता है। अगर हम इन सारी डिटेल्स को रिमूव कर दें तो जो बेसिक स्टोरी लाइन होती है वो होता है हमारा प्लॉट। इट इज़ द कोर्स ऑफ इवेंट्स। क्या क्या कहानी में इवेंट्स होते हैं, इंसिडेंट्स होते हैं, वो सारी इंसिडेंट्स और इवेंट्स मिला के बनता है कहानी का प्लॉट। और ये प्लॉट जो मोस्टली क्रिएट होता है कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। कॉन्फ्लिक्ट को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। कॉन्फ्लिक्ट इंटरनल या एक्सटर्नल कोई भी हो सकता है। इंटरनल का मतलब होता है कॉन्फ्लिक्ट जो कि कैरेक्टर के अंदर होता है, इनसाइड द माइंड ऑफ द कैरेक्टर। एक्सटर्नल जो कि मेन कैरेक्टर के बाहर या तो कोई दूसरे कैरेक्टर्स या कोई दूसरी एंटिटीज से रिलेटेड होता है। और प्लॉट जो है दो तरह के होते हैं। एक होता है सिंपल प्लॉट, एक होता है कॉम्प्लेक्स प्लॉट। सिंपल प्लॉट यानी कि बेसिक स्टोरी लाइन, बहुत सिंपल तरीके से जब कहानी कही गई होती है लीनियर वे में, बहुत ही लाइन टू लाइन, या यू कैन से कि लाइन से जो इवेंट्स जो बहुत अच्छे से अरेंज किए हुए होते हैं वन बाय वन, जिससे हमें कहानी बहुत आसानी से समझ में आ जाती है, उसे हम कहते हैं सिंपल प्लॉट। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मूवी आई थी श्रीदेवी की, इंग्लिश विंग्लिश। उस कहानी का जो प्लॉट था वो बिल्कुल सिंपल था। उस मूवी को देख के आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको आसानी से स्टोरी समझ में आ जाती है। तो वो होता है सिंपल प्लॉट। और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स प्लॉट। कॉम्प्लेक्स प्लॉट जहाँ पे कहानी को समझना इतना आसान नहीं होता है, या जहाँ पे बहुत सारे दूसरे सब प्लॉट्स मिलाकर एक कहानी को बुना जाता है, तो वो होता है कॉम्प्लेक्स प्लॉट। फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा फेमस मूवीज़ थी जो हॉलीवुड की, इंटरस्टेलर, इंसेप्शन, ट्रायंगल, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लॉट। और अगर बॉलीवुड में हम देखें तो दृश्यम एंड कहानी बाय विद्या बालन, ये जो मूवीज़ थी बॉलीवुड की, इन कहानियों का जो प्लॉट था वो बहुत कॉम्प्लेक्स था, इन्हें समझना इतना आसान नहीं था। सो सिंपल प्लॉट एंड कॉम्प्लेक्स प्लॉट। लेट अस मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एलिमेंट, कैरेक्टर। कैरेक्टर जो है कोई भी कहानी का ड्राइविंग फोर्स होता है। कैरेक्टर not necessary has to be a human. A character can be a person, an animal, a creature, an inanimate object that drives the story forward, जिसके एक्शंस को हम फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से हमें पूरी कहानी आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है। कैरेक्टर भी दो तरह के होते हैं। एक होते हैं मेन कैरेक्टर जिनके ऊपर पूरी कहानी बेस्ड है, और होते हैं माइनर कैरेक्टर्स जिसे हम सपोर्टिव कैरेक्टर्स भी कह सकते हैं। राइटर्स या रीडर्स भी पूरी स्टोरी में फोकस मेन कैरेक्टर्स पे रखता है, माइनर कैरेक्टर्स को इतनी ज़्यादा अटेंशन नहीं मिलती है। मेन कैरेक्टर में भी दो प्रकार होते हैं। एक होता है प्रोटोगनिस्ट, जो कि मेन, जिसे आप कह सकते हैं हीरो, मेन कैरेक्टर होता है पूरी स्टोरी का। हम पूरी स्टोरी में उसी की एक्शंस को फॉलो कर रहे होते हैं, उसी के बिहेवियर को, उसी के ड्रीम्स को, उसी की प्रॉब्लम्स को, उसी की जर्नी को फॉलो कर रहे होते हैं, जो कि कॉन्स्टेंटली कॉन्फ्लिक्ट में होता है या स्ट्रगल हो रहा होता है उसका किसी दूसरे मेजर कैरेक्टर के साथ, जो कि होता है एंटागनिस्ट, जिसे मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो विलन। कहानी जो है वो सिर्फ इन दो कैरेक्टर्स के इर्द गिर्द घूमती है, प्रोटोगनिस्ट द मेन कैरेक्टर एंड एंटागनिस्ट द अपोजिंग फोर्स, जिसे हम विलन कहते हैं, एंटागनिस्ट। सो दीज आर द मेजर फैक्टर्स ऑफ स्टोरी और अ नॉवेल. Now the next element is setting. Setting is like the background of any novel or any story. Setting is very important, and there are various aspects of setting. For example, place, period, time, climate, weather, lifestyle. कोई भी कहानी का प्लॉट में जान डाल देता है, वो होता है उसका सेटिंग। कि कोई भी कहानी लिखने से पहले राइटर को सोचना पड़ता है उस कहानी की सेटिंग क्या होगी, ये कहानी कौन सी जगह से ली गई है, ये किस वक्त की है, किस सीज़न में है ये इंसिडेंट्स हो रहे हैं, और क्या वेदर है उस टाइम पे, लोगों की लाइफस्टाइल क्या है। ये सारी डिटेल्स इकट्ठा करके जो नॉवेल है इंटरेस्टिंग बनती है. एंड नेक्स्ट इज़ कॉन्फ्लिक्ट.
कॉन्फ्लिक्ट कोई भी कहानी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। कॉन्फ्लिक्ट ही कहानी होती है। अगर कहानी में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है सो कहानी सिर्फ एक अनइंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की लिस्ट बन के रह जाती है। कहानी में कोई इंटरेस्ट नहीं होता अगर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है। व्हाट इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट? कॉन्फ्लिक्ट इज़ द कॉन्स्टेंट स्ट्रगल बिटवीन द अपोजिट फोर्सेस इन द स्टोरी। एक स्टोरी में जो संघर्ष हो रहा होता है, जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, उसी की वजह से स्टोरी में जान आती है। इट प्रोवाइड्स द इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी अबाउट द प्लॉट। कॉन्फ्लिक्ट भी दो तरह के होते हैं, एक होता है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और एक होता है एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जहाँ पे कैरेक्टर अपने ही अंदर की डिज़ायर्स या बिलीव्स या प्रॉब्लम्स से डील कर रहा होता है। सारी प्रॉब्लम्स या संघर्ष जो है उसी के अंदर है और इसकी वजह से उसका कैरेक्टर थ्रू आउट द स्टोरी चेंज होता है, डेवलप्ड होता है और एट द एंड वी कम टू नो व्हाट द रिज़ल्ट इज़। सो ये होता है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जहाँ पे सिर्फ मेन कैरेक्टर को अपने आप से ही संघर्ष करना होता है। दूसरा होता है एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट जो कि मेन कैरेक्टर के कंट्रोल से बाहर होता है। ये हो सकते हैं दूसरे कैरेक्टर्स या कोई दूसरी शक्ति या कोई भी चीज़। इट नेसेसरीली डज नॉट हैव टू बी अ पर्सन। सो एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट जो कि मेन कैरेक्टर के बाहर मौजूद जो चीज़ें होती हैं वो होता है एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट। और लास्ट में आता है लैंग्वेज स्टाइल। The language and the technique used by the author for the narration of event is known as the style। जैसे कि आपने देखा होगा कि हर किसी इंसान के बात करने का तरीका अलग होता है, उसी तरीक़े से हर राइटर के लिखने का तरीका भी अलग होता है जिसे उसका स्टाइल कहते हैं। और वो हर ऑथर अपने स्टाइल, अपने लैंग्वेज स्टाइल की वजह से फेमस होता है। Author can use extensive vocabulary and high phrases or write only to the point and be laconic, or he may mix both according to the requirement of his purpose। तो राइटर जो है वो बहुत तरीक़ों से लिख सकता है, या तो वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव वोकेबलरी, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्ड्स, ब्यूटीफुल वर्ड्स यूज़ करे, बड़े बड़े वर्ड्स यूज़ करे और अच्छे अच्छे फ्रेजेस यूज़ करे, या फिर राइटर चूज़ करता है कि वो बिल्कुल सिंपल टू द पॉइंट लिखे। कई बार राइटर कोई एक या दोनों टेक्निक को यूज़ करके, जहाँ पे वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी यूज़ कर रहा है, एक्सटेंसिव वोकेबलरी और हाई फ्रेजेस भी यूज़ कर रहा है, और कई बार कई जगहों पे वो बहुत सिंपली भी लिख रहा है। तो कई बार राइटर्स दोनों टेक्निक्स को यूज़ करके, डिपेंड करता है कि उनकी पर्पस क्या है, कि वो क्या बताना चाहते हैं अपनी स्टोरी से, क्या मैसेज देना चाहते हैं, उसके हिसाब से वो अपना टेक्निक चूज़ करते हैं। और ये सब मिला के बनता है टेक्सचर ऑफ द नरेशन के थ्रू आउट जो स्टोरी कहने का जो तरीका है उसका टेक्सचर क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, और इसकी वजह से इम्पैक्ट पड़ता है रीडर्स पे ओवरऑल पूरी स्टोरी का। सो दीज वर द मेजर एलिमेंट्स ऑफ द नॉवेल। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, please give a thumbs up, share among your friends and subscribe to the channel. Thank you very much.